Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. I woke up at 5 am. It is kind of my daily routine. I have been waking up at 5 am from past 3 years. Nowadays it is getting a bit colder outside because winter has already came. After making my bed, I changed to workout clothes and headed outside to do a HIIT workout, high intensity interval training workout. बिकॉज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था क्योंकि मुझे ड्यूटी के लिए भी निकलना था. सो दिस वर्कआउट फिट्स बेस्ट व्हेन यू डोंट हैव इनफ टाइम. Hello friends, welcome to the channel and I am on my way to the work and it is really foggy. Let me show you. As you guys can see, it is really foggy and seriously. So see you guys at the hospital. You know the drill. I got the work list and started heparinizing the syringes for ABG sampling and asked the patient attendant to bring some sputum extractor because we have to send sputum culture also, and collected all the things that will be required for the culture and the blood sampling vials, etc. Okay, so I'm done with the morning blood sampling, ABG sampling slash culture slash I don't know, police out. तो ये सब कंप्लीट कर दिया मैंने अब एंड नाउ आई विल ईट माई लंच एंड आई एम फीलिंग अ बिट वार्म. गर्मी लग रही है यार. लेट मी टेक ऑफ माई जैकेट. ओके एंड आई हैव टू सबमिट द फाइल्स ऑल्सो. मेरी पिछली लास्ट ड्यूटी के टाइम पे 2 पेशेंट एक्सपायर हो गए थे. सो आई हैव टू सबमिट दिस फाइल्स. तो ये कंप्लीट करूँगा मैं खाना खाने के बाद. ब्रंच करने के बाद गाड़ी में बैठ के खाना खाऊंगा मैं, क्योंकि साथ में मैं हाउस भी देखता हूँ, एमटी हाउस वेब सीरीज. So that is that. Now I will eat my brunch. So must have in the car is the tissue papers because they are really handy after eating my food. So हाथ साफ करने के अच्छे से काम आते हैं. So if you travel a lot in the car, then please do invest in these the tissue papers. They are really handy. So now I will complete the file and submit them in the MRD department. I was not able to submit the files because जिनके पास फाइल सबमिट करनी थी वो लीव पे थे. So I just came back to the hospital for the evening work and started doing that. नेक्स्ट डे गाइस एंड हमारे गांव में एक ब्लड कैंप लग रहा है. सो आई एम गोइंग देयर. मे बी आई विल डोनेट ब्लड. तो ये करेंगे एंड इट इज़ संडे. मैंने कुछ इतना मीनिंगफुल किया नहीं है आज. सो आई विल गो देयर डोनेट द ब्लड एंड आफ्टर कमिंग बैक आई विल रिसीव सम टाइल्स वाइट कलर की वो लगेंगे, वॉलपेपर काइंड ऑफ थिंग है. तो मैं दीवार पे लगाऊंगा टू make it look more aesthetic. So I am done with the blood donation, as you guys can see my certificate. And let me share you some info regarding the universal recipient and universal donor blood group types. So universal recipient, that is my blood group type. This is AB positive and universal donor is the O negative one. So O negative blood group हम किसी को भी दे सकते हैं और AB positive को हम कोई भी blood group दे सकते हैं.
great, yeah. And I recommend you guys to donate the blood as well if you are eligible. इसमें क्या फ़ायदा है कि आपके फ्री में वायरल मार्कर चेकअप हो जाएंगे एंड आप किसी को लाइक किसी के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हो यार, प्रीटी वियर्ड बट रियली हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो ब्लड डोनेट किया करो अगर कर सकते हो तो. सो आई हैव रिसीव्ड दिस पार्सल. काफ़ी हल्का है यार, वैसे लेंथ में देखे तो काफ़ी भारी लगता है बट वेरी लाइट. एंड आई हैव ऑर्डर्ड दिस वॉलपेपर काइंड ऑफ थिंग. पता नहीं वो टाइल सी आती है यार. अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ, दिखाता हूँ आपको. सो दीज आर द वॉलपेपर काइंड ऑफ थिंग. आई डोंट नो, खोल के देख लेते हैं यार. ओके, सो ये कुछ ऐसी है और ये दीवार पे लग के पता नहीं कैसी लुक आएगी. कैसा लग रहा है यार ये, पता नहीं, ऐसे रबड़ काइंड ऑफ थिंग लग रही है. सो आई विल अप्लाई इट नाउ एंड आई विल सी हाउ इट विल लुक. तो चलिए इनको इस वॉल पे अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं कैसी एस्थेटिक लुक आएगी कि नहीं इसके बाद में. So this is what I have been doing from past 1.5 hours and my room is complete mess. Look at this. And this is how it looks like. यहाँ तक किया है मैंने. यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा. रूम थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत कम आती है. सो लिंक फॉर दी सीट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. एंड एक मेरी पक्की रह गई, ये ऐसे रखूँगा. अभी इसको कोई ख़राब होगी तो फिर उसकी जगह ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी. दैट इज़ दैट फॉर नाउ. सो डन विद द स्टडी सेशन. एंड एज यूजुअल अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हो या शुरू से देखते आ रहे हो तो रियली थैंकफुल टू यू गाइस, अप्रिसिएटेड. तो जिस टाइम मैं वीडियो शूट करता हूँ उस टाइम मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाता स्टडीज़ पे, तो इसीलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता साथ के साथ वीडियो बनाना, क्योंकि इट इज़ रियली डिस्टर्बिंग. तो दैट इज़ दैट. अभी आई वांट टू शेयर सम, एज यूजुअल हर ब्लॉग में मैं बताता आता हूँ सम इन्फॉर्मेटिव इन्फो. So I was scrolling down through Instagram and one post came suddenly about Menkes disease. तो जैसे ही मैनकेज पढ़ा मैंने तभी मेरे दिमाग में आ गई विल्सन डिजीज. तो बोथ डिजीजेज आर रिलेटेड टू द कॉपर. एक में कॉपर बढ़ जाता है, एक में कॉपर कम हो जाता है. तो मैनकेज में कॉपर कम होता है, विल्सन में कॉपर की डिपोजिशन होती है इन वेरियस ऑर्गन्स एंड देयर आर की डिफरेंसेस इन बिटवीन दिस डिजीजेज. सो लेट्स गो विद द विल्सन. तो विल्सन में क्या होता है, कॉपर बढ़ जाता है एंड इट इज़ क्रोमोसोम नंबर 13 डिफेक्ट ATP7B. ATP7B विल्सन के W को हम अगर ऐसे लिखेंगे, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, उसके सामने 1 लगा देंगे तो 13 क्रोमोसोम. तो ऐसे याद किया था मैंने विल्सन. तो ऐसे ही मैंने हंटिंगटन का याद कर रखा है कि 5-15 है शायद. हंटिंगटन में क्रोमोसोम नंबर 15 होता है मेरे ख्याल से. मार्फन में होता है क्या क्रोमोसोम नंबर 15? या क्रोमोसोम नंबर 4 होता है हंटिंगटन में एंड मार्फान में होता है क्रोमोसोम नंबर 15. तो एच का हंटिंगटन का मैंने ऐसे 4 बना रखा है, तो ये नीचे वाला वो हटा दिया तो क्रोमोसोम नंबर 4 हंटिंगटन डिजीज में. तो ऐसे मैं जो उनके वर्ड होते हैं उससे ही उनका क्रोमोसोम नंबर याद करने की ट्राई करता हूँ, रिलेशन करने की को रिलेट करने की ट्राई करता हूँ. तो विल्सन में जो W होता है उसका W ऐसे घुमा देंगे तो 3 हो जाएगा, उसके आगे 1 लगाएंगे तो 13, क्रोमोसोम नंबर 13. एंड इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज विद ATP7B जीन डिफेक्ट. और मैन केस में क्या होता है, X linked recessive disease with ATP7A. तो मैन केस ATP7A, विल्सन ATP7B. मैन केस देयर इज kinky hair, ठीक है, एंड हाइपोटोनिया, ट्रंकल हाइपोटोनिया. एंड इन विल्सन देयर इज विल्सन का काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, FMC एग्जाम में. केसर फ्लेसर रिंग इन द आइज. तो आँख की फ़ोटो दे देंगे, क्लिनिकल सिनेरियोज दे देंगे, तो उसमें लाइक जोनडिस्ट पेशेंट होगा, कॉपर डिपोजिशन, तो ये हो जाएगा. फिर इसमें इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं हम विल्सन का, तो मुझे याद है सेरोलोप्लाज्मिन करते हैं हम. तो सीरम सेरोलोप्लाज्मिन
एंड कॉपर भी चेक करते हैं हम कि 24 आवर यूरिनरी कॉपर, पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मेरे ख्याल से सेरुलोप्लाज्मिन है। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसमें तो हम कॉपर देंगे क्योंकि कॉपर की कमी है मैन केस में। तो विल्सन में हमें कम करना है तो उसमें हम चिलेटिंग एजेंट दे देंगे, कॉपर चिलेटिंग एजेंट्स लाइक पेनिसिलामाइन देते हैं, पेनिसिलामाइन एंड कॉपर डाइटरी कॉपर हम डिक्रीज करेंगे। सो दैट इज दैट। तो कॉपर और विल्सन याद रखना, विल्सन का एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है विद द आई फोटो केसर फ्लेसर रिंग्स। और क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, या समवन आस्क्ड मी अबाउट द सैम्पलिंग, एबीजी सैम्पलिंग। तो एबीजी सैम्पलिंग मैं कैसे लेता हूँ कि मुझे रेडियल इतने अच्छे से नहीं आता था बिफोर दिस जॉब। आई जस्ट ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई टुक इट लाइक फॉर सेवरल टाइम्स, नॉट दैट मच लाइक इतना मैं एक्सपीरियंस नहीं था, बट नाउ आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल विद द रेडियल सैम्पलिंग। तो क्या करता हूँ मैं, कुछ भी कर रहा हूँ तो अपने आप पे फील करता हूँ मैं उस चीज़ को। तो रेडियल आर्टरी को अपने आप पे फील करके ट्राई करना, तो मैं ऐसे ही करता हूँ अपने यहाँ पे। तो हमें ना एक वो आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे लोकेट है, कैसे आती है, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में करते हैं क्योंकि दूसरे पेशेंट पे हम इतना अच्छे से फील नहीं कर पाते जितना अपने आप पे कर पाते हैं। ऐसे ही मैं फीमरल का करता हूँ, जब मैं कभी लेटा होता तो फीमरल अपनी पल्स चेक करता हूँ कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसी हिसाब से मैं सोचता हूँ। फिर जब पेशेंट का भी करता हूँ तो सो जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दैट कोड लाइक स्ट्रक्चर हेयर। मैम टोल्ड मी, डीएम जो हमारे मैम कर रही है, डीएम ओ एमडी और डीएम में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको थोड़े दिन पहले ही पता चला मुझे भी। तो एमडी की फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड डीएम की फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। तो अभी जो हमारे आईसीयू में मैम है, तीन है वो, तो तीनों डीएम है वो, तो उनके अंडर ही काम करते हैं हम, डीएम का कोर्स कर रहे हो। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ सैम्पलिंग ही बता रहा था। तो अपने आप पे फील करना, यहाँ पे मैम ने बोला था कोड लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो पहले मैं क्या करता था, एक थंब से ऐसे फील करता था मैं रेडियल आर्टरी को, बट अब क्या करता हूँ मैं तीनों अपनी लाइक इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर लेके लाइक मैं इसको फील करने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे एक हमें उसकी लोकेशन का अंदाज़ा हो जाता है कि लोकेशन का आइडिया कि कैसे उसका लाइक पाथ है रेडियल आर्टरी का, तो उस हिसाब से फिर हम लाइक प्रिक करते हैं। सो दैट इज़ दैट। ये एक रियली हेल्पफुल टिप है अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो। सो दिस इज़ अबाउट द ईबीजी सैम्पलिंग एंड फोलीज कैथेटर डाल लेते हैं मैंने उस दिन पेशेंट्स के। व्हाट आई कैन शेयर अबाउट फोलीज कैथेटर, या फॉर फोलीज कैथेटर जस्ट कीप इन माइंड दैट जब उसको ना पूरा इंसर्ट करना है आपको यूरेथ्रा में, आगे तक जाना चाहिए। चाहे आपका लाइक यूरिन आ गया हो पाइप में, बट फिर भी उसको आगे तक इंसर्ट करना है क्योंकि इसमें यूरेथ्रा रप्चर का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। एक इंटर्न ने कर भी दिया था हमारे टाइम पे। तो ये अपनी लाइफ में लाइक हमेशा ध्यान रखना कि पूरा इंसर्ट करके फिर इन्फ्लेट करना, क्योंकि एक बार अगर यूरेथ्रा रप्चर हो गया तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट, क्योंकि ये इतना लाइक हम इसको इतना स्टीराइल नहीं रख सकते जेनिटो यूरिनरी एरिया को, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं और सर्जरी करके हमें रिपेयर करना पड़ता है यूरेथ्रा, फिर उसके बाद रिकवरी पता नहीं कैसी रहती है। तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट, उसकी लाइफ फेल हो जाती है यार। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कीप इन द माइंड व्हाइल इंसर्टिंग द फोलीज कैथेटर। और दैट इज़ ऑल आई थिंक। काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव वीडियो फिर से होगी एंड कमेंट डाउन बिलो कि बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, दिस काइंड ऑफ वीडियोस, एंड आई होप यू एंजॉय लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है एक व्लॉग का। तो ये आप एंजॉय करते हो और मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर करने की ट्राई करता हूँ। जितना शेयर करता हूँ वो मुझे भी याद रहता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था अबाउट द शोल्डर डिसलोकेशन, मोस्ट कॉमन शोल्डर डिसलोकेशन इज द इंटीरियर वन, और इसमें हम टीम वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रैक्शन देन एक्सटर्नल रोटेशन, अडक्शन एंड देन मीडियल रोटेशन। तो ये मुझे याद है। फिर मुझे ये याद है कि न्यूनेट्स के एपनिया में हम ड्रग ऑफ चॉइस कैफीन सिट्रेट, अगर वो नहीं होगी तो एम्पिसिलिन देंगे। तो मैं शेयर करता हूँ, मुझे भी लंबे टाइम तक याद रहता है। सो आई होप कि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड एंजॉय करते हो आप मेरे व्लॉग्स को। हिट द सब्सक्राइब बटन इफ सो, अगर आप एंजॉय करते हो तो। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय, पीस।